میں ایک وہ لگا ہوا ہے قاری خلیمان جاوید صاحب، ایک کل دیکھا تھا میں نے، مجھے کسی نے بھیجی تصویر سے آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ لگا ہوا تھا کہ جی 8 رکعت والے ادھر جائیں اور 20 رکعت والے ادھر جائیں. کہاں جائے آدمی تراویح کے لیے؟ مجھے یہ واقعی لگا ہوا ہے بورڈ. یہ تو میرا خیال ہے انتظامیہ نے شاید کوئی سہولت دی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس جگہ کچھ ایسی گیدرنگ ہو جہاں 20 اور 8 والے دونوں ہوتے ہوں، تو انہوں نے ایک جھگڑے سے بچنے کے لیے ایک بیچ کی راہ نکالی، ایک راستہ ادھر ایک راستہ. ہاں ایسا کر دیا. باقی مسئلہ تو ایک ہی ہے. جن کے ہاں 20 لفظ تراویح جی جمع کا لفظ ہے جی. تراویح، اس کا واحد کیا ہے؟ ترویحہ. تو 4 رکعتوں کے بعد اتنی دیر بیٹھنا جتنا 4 رکعت میں ٹائم لگا ہے آرام پانا، جی. تو یہ ترویحہ ہوا. صحیح. اگر 8 ہوتی تو اس کا نام ترویحتین ہونا چاہیے تھا، تراویح نہیں ہونا چاہیے جی تھا. قاری صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح کی اصطلاح ہماری ہے. صحیح. تراویح کی اصطلاح ہماری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی اصطلاح استعمال نہیں فرمائی. صحیح. دوسری بات، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، موطا امام مالک کی روایت ہے، جب آپ سے پوچھا گیا، غالباً آپ کے بھانجے نے آپ سے پوچھا کہ رسول اکرم جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کیا تھی. سوال یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کیا تھی؟ تو آپ فرماتی ہیں ما زاد فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، وتر سمیت اللہ کے حبیب 11 رکعت سے تجاوز نہ فرماتے. جب مسئلہ حل ہو گیا، مطلب یہ کہ ویسے ان کی طرح اب آپ بتا دیں. دیکھیں اس طرح ان کا ایک اپنا وہ ظاہر ہے، یعنی وہ تو ہے بات کر رہے ہیں، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو حدیث میں 36 رکعت بھی ہیں اور حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. اسی طرح حدیث کے اندر 20 رکعتیں اور اس پر اجماع ہے. میں عرض کر رہا ہوں اس پر اجماع ہے، اور اس طرح یقیناً مولانا بھی اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے. اجماع تو مانتے ہیں آپ کہ اجماع مانتے ہیں، لیکن اجماع جو انہوں نے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے، یہ بات غلط ہے. ظاہر ہے ہم اجماع کو ہم مانتے ہیں، سن کے وہ جو بہتر فیصلہ عوام کر سکتے ہیں. جی جی اس میں یہ ہے کہ اس پر اجماع ہے، اور امام ترمذی نے اس کو ذکر فرمایا ہے. امام ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے جس میں 20 رکعتوں کا ذکر موجود ہے. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، اور چاروں جو مسالک ہیں احناف، شوافع، مالکیہ اور سب کا اجماع 20 کم از کم. یہ الگ بات ہے کہ بعض کے نزدیک 36 رکعتیں بھی ہیں. تو اب اگر ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی ایک روایت کو لے لیں تو پھر یہ بھی تو حدیث ہیں، ادھر ان کو کیا کریں گے؟ تو پھر اس کا مطلب وہ طریقہ صحیح نکالا ہے پی ایف میوزیم والوں نے، 8 والے ادھر جائیں اور بات. ڈاکٹر اس صاحب میں صحیح ہے، وہ صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ہم آج اگر رکعت پہ جھگڑا ہی کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن 20 نکلی، یہ 12 کہاں سے لائیں گے؟ اور وہ کہیں گے اگر 8 نکلی تو 20 تو ہمیں تو ثواب ہی ہوگا. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، امام کے پیچھے یہ فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں. اگر رب نے پوچھ لیا کہ پڑھنی تھی، آپ کا کیا بنے گا؟ میں نبی پاک کا وہ ارشاد بھی دکھا دوں گا. میں نبی پاک کا وہ ارشاد بھی دکھا دوں گا. تو وہ ارشاد ہم بھی دکھا دیں گے. ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی. جی جی اتنی دیر میں یاد آئی، اتنی دیر سے موطا امام مالک کی روایت آپ نے پڑھی، ہم اپنے نصاب میں پڑھاتے ہیں. سیاہ ستہ کی انہوں نے پڑھی، وہ آپ بھی اپنے نصاب میں پڑھاتے ہیں. یہ دلائل اپنی جگہ رہے. تمام مسلمان خانہ کعبہ کو، مسجد نبوی کو اپنا مرکزی مقام مانتے ہوئے اس کو قبلہ مانتے ہیں، اور بالخصوص جس مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں. وہاں پر کیوں 20 رکعت ہوتی ہے؟ جب وہاں پر 20 رکعت ہوتی ہیں تو آپ کو جھگڑا ہی ختم کر دینا چاہیے. سبحان اللہ. اگر جھگڑا خانہ کعبہ اور مسجد نبوی پہ ہی ختم ہونا ہے الحمدللہ، جھگڑا تو ایسے ہے بھی نہیں، اور اگر اسی پہ ہی ختم ہوتا ہے تو وہاں تراویح سال بعد آتی ہیں، رفع الیدین روز ہوتی ہے، آمین روز ہوتی ہے، وہ نہیں نظر آتی. الحمدللہ ہم ٹی وی پہ بھی دیکھی جاتی ہے. میں الحمدللہ ہم لوگ رفع سال بعد والی بات پکڑ رہے ہیں جو روزانہ ہو رہی ہے. ہم تو رفع یدین روزانہ کرتے ہیں.
हम जब भी अच्छा, नमाज और फिर शुरू करते हैं दरअसल रफ़ा यदैन करते दूसरी हैं, मजे की बात जब ये है। वितर पढ़ते हैं रफ़ा यदैन करते हैं। मगर वो जहरी आमीन भी तो कहने वहाँ होती है। भाई देखो, भाई ये बता दें कि डॉक्टर साहब, हमारा दूसरी बात ये नहीं, जहरी आमीन पे मैं आपकी बात- देखिए दूसरी नहीं, बात ये साहब है कितने सहाबा थे जो रफ़ा यदैन करते थे, मेरे गौस से पाक करते थे। हमारा ये रफ़ा इख्तिलाफ यदैन के हमारा कायदे हैं। इख्तिलाफ बिल्कुल रफ़ा आपने अच्छी यदैन बात कही। रफ़ा यदैन पर नहीं है। और से पाक तो अमली थे ना वो क्या? नहीं, हमारा इख्तिलाफ नहीं, रफ़ा मैं ये नहीं कह और आज यदैन, तो बात दिन तो भी सुन गौस ले। से पाक इन्होंने कहा वो रफ़ुल यदैन करते थे, मैं मानता हूँ, अच्छी बात उनको है। गौसे आजम भी तो कि माने। चलो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वो अलैहि मानते हैं, वसल्लम मानते हैं वो साहब। देखिए आप मानते हैं ना वो अगर साहब? रसूलुल्लाह सल्लम की नहीं, वजह मगर आप मानते हैं, आपको एक- बता दें। मैं गौस अल्लाह को मानता अच्छा, हूँ। अच्छा। नहीं, अगर गौस रसूलुल्लाह सल्लम की वजह से नहीं कर रहे, अगर रसूलुल्लाह सल्लम की वजह से नहीं कर रहे तो चलो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की वजह से करें तो सही ना। मुझे ये बताएं, एक मिनट जवाब दीजिएगा, रफ़ा यदैन फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत मुअक्कदा, इनमें से क्या है? अल्लाह के रसूल करते थे इसलिए हम मैं सिर्फ अल्लाह हम के नहीं रसूल और जानते। बहुत कुछ करते थे। ये बात तो सहाबा भी नहीं जानते थे। नहीं तो फिर आप मुअत्ता बहस इमाम तब मालिक करें में कि कोई देखिए, फायदा हो। मुअत्ता इमाम मालिक में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछने वाले ने पूछा वितर फर्ज हैं, सुन्नत हैं, वाजिब हैं, क्या हैं? 3 दफा उसने पूछा। मैं अब्दुल्लाह इब्न उमर तो छठी सफ में खड़े होते थे, दूसरी में तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद खड़े होते थे। ये मसला दूसरा। अच्छा। उनसे 3 दफा पूछा कि वितर जो है फर्ज हैं, सुन्नत है, वाजिब है, क्या है? तीनों दफा एक ही जवाब दिया कि यार अल्लाह के रसूल पढ़ते थे इसलिए हम पढ़ते थे। अच्छा चले बस ठीक साहब, है। ये मसला मतलब सुबह से इसका जिक्र हुआ था। मतलब ये आपकी अवाम बात के ये है कि आपकी 8 तो देखिए, हम पढ़ते हुए गुजरते हैं, हजरत आप हमारी भी 20 पढ़ लें। आप हमारे भी 20 पढ़ लें। हजरत आखिर में डॉक्टर साहब देखिए, दरअसल क्या हुआ? बैतुल्लाह अच्छा वो तो पढ़ते ही नहीं ना, उन्होंने कहा मैं तो खाम हो जाता हूं। देखिए मैं जो इस बहस के बाद पढ़ना शुरू कर दी। मैं यहाँ पे 2-3 बातें अर्ज करता हूँ। जी जी जी। ये तरावीह का मसला हो या रफ़उल यदैन का मसला है, ये मारकतुल आरा मसाइल हैं जिन पर मदारिस इस्लामिया में बड़े बड़े दिनों तक उस्ताद बहस करता है और शागिर्द लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। अगर ये सारे मसाइल निकाल देंगे तो दरस निज़ामी तो बड़ा मुख्तसर सा हो जाएगा। इन्हीं मसाइल की वजह से एक लंबे ज़माने तक बातें चलती हैं और किताबें चलती हैं। लेकिन हम जिस फोरम पे बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, यहाँ पर हर किस्म के लोग हमें सुन रहे हैं, इसीलिए देख तो रहे ये हैं। बात की ताकि सब अपने अपने और तरीके से करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सलाहियत और इल्मी सलाहियत इस्तेदाद इतनी नहीं होगी। सही बात। हो सकता है कि वो हमारी इस नहीं आपस के नहीं वो मसाइल से आपकी इस तरफ बात चले। से सुन के सब अपने अपने तरीके से करेंगे। अब एक लेकिन बात दलील मिल मैं जाएगी। सिर्फ एक बात जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो मौलाना खलील रहमान साहब ने अर्ज़ की है, माज़ादा वाली जो रिवायत अर्ज़ की है, देखें 30 शाबान को अल्लाह के नबी ने एक खुतबा इरशाद फरमाया जो बुखारी में सारी किताबों में मौजूद है। उस खुतबे में अल्लाह के नबी ने जहाँ बहुत सी बातें इरशाद फरमाई, वहाँ एक ये भी फरमाया इस रात में एक क़याम भी तुम पर बढ़ाया है, एक नमाज का इजाफा भी तुम पर किया गया। उस खुतबे को देखा जा सकता है। फिर जो रिवायत है मन सामा रमज़ान व क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और क़याम किया। इसका मतलब कि क़याम आगे पीछे भी चलता है, लेकिन रमज़ान को क़याम के साथ और फजीलत हासिल है और रमज़ान में एक क़याम अलहदा फ़र्ज हुआ है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि मैं हज़रत मौलाना खलील रहमान साहब से पूछता हूँ, क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे सहाबा को जमा करके मस्जिद नबवी में 20 तरावीह रकत पढ़ाई थी या नहीं? नहीं नहीं आपने क्या क्या मौक़िफ़ है ये बता दें। मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम के यहाँ उन्होंने जो सवाल पूछा वो जवाब भी खुद भी दे देना। उन्होंने कहा नहीं, नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मैं- हाँ या नहीं? नहीं उन्होंने मुझसे उनका- सवाल पूछा, मैंने कहा नहीं। भाई सवाल उनसे नहीं पूछा, उनसे आप पूछा। मुझसे वजाहत करें ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ और कि फरमाया देखें, हाज़िही सवाल ये है- निअमतुल बिदअत, जब सहाबा को देखा जमात के साथ तरावी की नमाज डॉक्टर पढ़ते साहब हुए मैंने और ये पिछले फरमाया साल आपकी भी तौसीफ भी बरमला फरमाया। कहा था, मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत निअमतुल है। बिदअत। हज़रत उमर अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ मदीने में गश्त कर रहे हैं और सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक फ़र्दन नमाज पढ़ रहे हैं। मस्जिद नबवी के अंदर तरावियाँ हो रही हैं, लेकिन अलग अलग। उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमीम दारी और उबई इब्न काब, ये दोनों कुरान मजीद के हाफिज़ कारी और जलील क़द्र साहबी थे, इनको मुकर्रर फरमाया। और इसी रिवायत के अंदर मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर अल्फाज हैं कि तुम लोगों को नमाज पढ़ाओ 11 रकअतन, 11 रकतें।
अच्छा अब नतीजा ये यहाँ- निकलता है, देखिए ना कि सब ने अपने अपने तरीके से चलना नहीं, है तो हजरत और ये उमर अच्छी पर बात है। इल्जाम बनाया ना नहीं, कि नहीं, कोई उन्होंने इल्जाम 20 नहीं, रकत नहीं, पढ़ाई। निज़ाम नहीं, निज़ाम इस तो पर नहीं, दलाइल हैं, ये तो इस पर दलाइल किताबें हैं, है। लेकिन किताब- आज मुझे एक खुशी जरूर हुई है कि बहुत खुशगवार अंदाज में बात हो रही है। नूरानी साहब, बड़ी मजे की अल्हम्दुलिल्लाह, बात तो है हमेशा- उनको तो कम बताने से कम दें। बुखारी से नीचे उतर के मोता पे तो आए हैं ना, सुभान अल्लाह। वरना तो हर बात चले, बुखारी मोता से इमाम होती है, मालिक कम से को कम तो बुखारी से हम उतर के हर मोता पे तो आए हदीस हैं। जो सही हो, मानते हर हैं, हदीस मानते हैं, इसीलिए आप अहले हदीस हैं। ये बिल्कुल इसीलिए आप बिल्कुल जी हर आप हदीस फरमाइए। अगर आप हर हदीस सही को मानते हैं तो फिर तिरमिजी की हदीस के ऊपर सनदन कोई एतबार नहीं है, आप उसको क्यों नहीं मानते? वो जब जिसमें बहस 20 होगी तो रकत होगी। अच्छा इंशाअल्लाह मकतब करेंगे, अहले इस पर सनद पर भी मकतब अहले बैत का मौक़िफ़ बदल मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम में ये बात वाज़ेह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जमात के साथ ऐसी नमाज नहीं पढ़ी। किसी भी सनद से ये बात साबित नहीं है। ये बाद में असहाबे किराम ने इस काम को शुरू किया, जैसे कि आपने फरमाया नेमुल बेदर। मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि माह रमज़ान की रातों में कुल रातों में 1000 रकत नाफिला की पढ़नी है। पहले 20 दिन 30-30 रकत और आखिरी 10 दिन जो हैं वो 20-20 रकत, 19, 21 और 23 में 100-100 रकत। इस तरह से 1000 रकत का हमारा कुल एक कोटा है जो हमें अदा करना आप ठीक है, आपका तरीक़ाकार है। माशाल्लाह इमाम मालिक तक तो पहुंच गए, यहाँ तक तो तुमको लगा लाए हैं पहले बातों से में। पहुंचे हैं कुछ वैसे और यार। खुल जाओगे दो चार पहले मिनट। से अच्छा चलें ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी, देखिए ये बड़ी इस वक्त हेल्दी डिबेट हुई है, ये मैं आपको बता दूं, और ये आपकी वजह से होती है, क्योंकि आप इतनी मोहब्बत से सबकी सुनते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं या और कह देते हैं नहीं। एक वक्फा लेते हैं। नहीं है तो नहीं कहते। हाँ, वक्फे के